Hi students, welcome to Standard Education Academy. I am Khan sir. Today I am going to continue this. Okay, not only continue. This is the first part of subsidiary books. Okay, financial accounting, subsidiary books. What is subsidiary books? Yeah, what are subsidiary books? Now see here. What is actually ये subsidiary books क्या है? In accounting, normally what happens in day-to-day business transaction, we maintain books of accounts and we write the first entry, journal entry. Okay, suppose say example, if we are selling the goods on cash, what is the entry? Cash account debit to sales account. Suppose say example, in any supermarket, DMarts, customers will purchase 100 and 100 more than 100 items. So what the entry they will pass? Cash account debit to sales account, cash account debit to Lux account, cash account debit to Gold Drop account, cash account debit to Pampers account, cash account debit to Biscuits account. How many times they will write this cash account debit to sales, cash account debit to sale of sale of cashew nuts, sale of dry fruit, sale of palm oil, sale of rice. How many times they will repeat this entry? So to overcome this kind of problems, which entries which are repeated again and again, जो बार बार होने वाले एंट्रीज है, रिपीटेड एंट्रीज है, उसके लिए बुक्स बना दिए गए हैं, उसी को बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स. व्हाट वी कॉल देम? Subsidiary books. And subsidiary books, how many types of books are there? Subsidiary books. Okay, open your material and check in that material how many types of subsidiary books are there. Okay, so you might be finding okay, first just I am also checking the material that is given in your introduction part. First में था आपको subsidiary books का introduction part में था, ये book में नहीं है. If you open the introduction part, you will find the page number 13 or 14. In that you are having subsidiary books, cash book. Okay, so in that cash book we are having 2 column cash book, single column cash book, 2 column cash book and 3 column cash book. Then bills, purchase book, purchase return book, sales book, sales return book. Okay, bills receivable book, bills payable book. ये पूरे एक subsidiary books हैं. और लास्ट में है journal proper. The entries transactions which are not recorded in the above books, that must be वो journal proper में entries record करना है. But now here our main topic is subsidiary books. In that subsidiary books we are having the 3 column cash book. What is that? Three column cash book. Okay, so 3 column cash book हमारे पास ये मेन टॉपिक है. उस्मानिया यूनिवर्सिटी का रिपीटेड क्वेश्चन है, बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अंडर दैट सब्सिडरी बुक्स. कम ऑन सर. सो व्हाट इज कैश बुक? 3 column कैश बुक है ना. व्हाट इज कैश? सी, कैश इज अ रियल अकाउंट. कैश इज नथिंग बट योर एसेट है आपका. व्हाट इज द रूल ऑफ द कैश बुक? Debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. So here note, cash include bank transaction. क्योंकि हम 3 column कैश बुक कर रहे हैं, इसीलिए 3 column कैश बुक में बैंक का कॉलम भी आता है, इसलिए बैंक इंक्लूड, कैश इंक्लूड्स बैंक कॉलम. नॉर्मली डेबिट साइड हम क्या करते हैं? रिसिप्ट्स एंड डेबिट्स, बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी रिसिप्ट्स एंड डेबिट्स, एंड व्हाट गोस आउट, जो भी पेमेंट्स है वो क्रेडिट. तो कैश सेल्स मींस डेबिट, कैश रिसीव्ड मींस डेबिट, चेक रिसीव्ड मींस डेबिट. ले रहे आ रहा आपको ये कैश परचेजेस, पैसे जा रहे, पेमेंट कैश मेड फॉर एनीथिंग इश्यूड, हम पेमेंट करें जा रहे. Salary is paid, rent paid, all payments, expenses incurred, whatever the expenses are there, ये पूरे क्या होगा? क्रेडिट होंगे. तो जनरल रूल यू अंडरस्टैंड दैट कैश इज ए रियल अकाउंट. कैश बुक में जो भी आएगा डेबिट साइड पूरा रिसिप्ट्स रहेंगे, डेबिट साइड पूरे रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड पूरे
payments. Clear? Now move on. In this, as we are saying that के cash include bank transaction, तो ये 3 columns क्या है सर, थोड़ा concept क्या है, तो see here. In this 3 column, why we call this 3 column cash book or 3 column? So 3 column means, see here, you are finding 1 column is for discount and second column is for cash and third column is for bank. ये 3 column से आपको amount लिखने के, so here also you are finding credit side discount, then cash, then bank. Clear? That's why this is calling 3 column cash book. So in debit side we are having 3 columns and in credit side we are having 3 columns. तो सर ये डिस्काउंट अलाउड है एंड ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? अलाउड मीन्स दैट इज नथिंग बट यू हैव फॉरगिवन. अब मेरे को एक आने का था 12,200, आई हैव टेकन 12,000 एंड 200 आई हैव गिवन द डिस्काउंट. आई एम अलाउड, मैं डिस्काउंट छोड़ दिया 200 रुपए. 12,000 rupees I have taken and 200 rupees I given the discount. Like that I am making the payment. मैं पेमेंट कर रहा हूँ मेरे सप्लायर को, मेरे को जो गुड्स सप्लाई करे उनको पेमेंट कर रहा हूँ. से एग्जांपल 9,500 है, मैं बोला कि मेरे 9,000 ले लो सेट फुल एंड फाइनल 9,000 में 9,000 पेमेंट कर दिया. 500 rupees I have received the discount. So वो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है एज लाइक नॉन, तो ये क्रेडिट में दिखता है आपका एंड ये आपका डेबिट में दिखता है. ये दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट है 3 कॉलम कैश बुक कैसा ड्रॉप करने का बोल के. Clear? Okay. Now, so ठीक है. Right. So come on, move to the other main topic. वो एक मैं बता दिया आपको कि कैसा लगता है एक्चुअली. So here contra entry which means double effect. Contra entry क्या है? Double effect होती, इसी को हम बोलते हैं contra entry. Where cash and bank both account involved, both account, जो भी कैश और बैंक, कभी भी कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ कैश और बैंक आते हैं तभी इसको, ठीक है नहीं, contra entry बोलेंगे. ओके, नीचे एग्जाम्पल यू हैव, सपोज एग्जाम्पल यू आर हैविंग कैश, you have cash in your wallet, आपके पास वैलेट में कैश है कितना 20,000 एंड आपके बैंक अकाउंट में कितना है 40,000. एग्जांपल आई एम गिविंग. नाउ योर फ्रेंड आस्क्ड यू टू हेल्प हर और हिम टू जस्ट डू 10,000. ओके, she will pay cash. Okay, now she is saying that okay you just make an online payment Google Pay. Okay, गूगल पे 10,000 रुपीज करने के लिए बताया आपके फ्रेंड एंड से यू हैव पेड ऑनलाइन, आप क्या करें ऑनलाइन पे कर दिए और वो आपके फ्रेंड से आप क्या करें कैश ले लिए 10,000. नाउ सी नीचे देखिए बैलेंस आपके पास, कैश बैलेंस, ऑलरेडी कैश बैलेंस कितना था आपके पास वैलेट में, हियर 20,000. द 20,000 प्लस नाउ 10,000 यू रिसीव्ड फ्रॉम योर फ्रेंड, तो टोटल कैश कितना हो गया 30. एंड बैंक में आपके पास कितना था यहाँ पे 40, बट बैंक में कितना हो गया अभी 30. क्यों? आपके पास 40,000 था, मैंने सबके फ्रेंड को आप गूगल पे कर दिए, तो कितना कैश रहेगा बैंक में? अभी बैंक में आपका 30,000 है और कैश में 30,000. मींस पहले भी कितना था आपके पास टोटल अमाउंट 60,000. नाउ इज आल्सो यू आर हैविंग द 60,000. तो देयर इज अ नो चेंज, आपके पास कुछ चेंज नहीं हुआ. तो ऐसी ही कैश कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता, कैश निकल के बैंक में जाता, बैंक से निकल के कैश में आता, ये कुछ भी स्पेशल चेंजेस नहीं होते. क्लियर? तो इसीलिए यहां पर क्या करते अपन कॉन्ट्रा एंट्री पास करते विच, और अपन उसको स्पेसिफाई भी करते ये कॉन्ट्रा एंट्री है बोल के. बट मैं आपको थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम भी दिया आपको अच्छे से समझ में आने के लिए, आप देखिए कैसा होता है. ओके, नाउ सो एक उस्मानिया क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड में दिया आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन द बुक्स ऑफ दिनेश प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक, प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक. सो कैश बैलेंस कितना है आपका 21,000, बैंक बैलेंस कितना है आपका 40,000. देखो कैश परचेजेस, गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है ना. तो ये क्या है आपका, ये देखिए नीचे दिया मैं आपका. ओके,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000 कैश में है, 40,000 क्या है बैंक में है। और परचेस करे बोल के बताया मैं आपको, परचेस गुड्स फॉर कैश 3,000, अगेन परचेस गुड्स फॉर कैश 6,000। तो ये क्या है आपका पेमेंट से, ओके क्रेडिट साइड में है तो पेमेंट से पैसे जा रहे, ओके अपन लिखते नहीं यहाँ पर, दीज आर द रिसिप्ट्स एंड दीज आर द पेमेंट्स, ओके ये पेमेंट्स है आपके, बट पेमेंट साइड बोल के हम क्लियरली बोलते नहीं इसको, नॉर्मल ऐसा, ये रिसिप्ट्स है आपके, ओके दीज आर योर रिसिप्ट्स। नाउ अभी क्या है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो देखने का है आपको, ओके सो मैं क्या करा, फर्स्ट आपका यहाँ पर पेमेंट दिया। अब देखो नेक्स्ट फिर जैन 6 को गुड्स सोल्ड 9,000 रुपीज एंड ओके 12,000 रुपीज, गुड्स सोल्ड 9,000, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सेम लैंग्वेज है, ओके सेम लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आके गुड्स सोल्ड 9,000 बता टू सेल्स 9,000, सेल्स करने से आया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री आती, फिर नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट 12,000। तो ये क्या है आपके रिसिप्ट है, जब भी गुड्स बेचते हैं आप तो पैसे आपके आ जाते, उसको बोलते हैं हम रिसिप्ट, ले रहे अपन, अपने पास पैसे आ रहे। यहाँ पर क्या था, क्रेडिट में परचेस करे तो पैसे जा रहे बल्कि क्रेडिट में लिखे अपन पेमेंट से बोलते, क्लियर नाउ। फिर उसके बाद में सिंपल ट्रांजेक्शन वंस अगेन, देखिए गुड्स परचेज ऑन 17, गुड्स परचेज पेमेंट मेड बाय चेक 14,000। हम क्या करें, गुड्स परचेज करें और पेमेंट कैसा दे रहे, बैंक के थ्रू दे रहे, चेक के थ्रू दे रहे। तो यहाँ पर देखिए ऑन 17 ओके बाय परचेज, बैंक में से पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक कॉलम में लिखे 14,000, we have written 14,000 on bank side because the amount is going from bank, because payment made by check, so ठीक है, बैंक से पेमेंट हुआ बैंक में लिखना। गुड सोल्ड, ठीक है, गुड सोल्ड 19 को चेक रिसीव्ड। ना अपन गुड्स परचेस करे थे तो चेक दिए ना, अपन गुड्स ठीक है सेल करके चेक ले रहे अपन, वी आर रिसीविंग द चेक हियर, see we have sold the goods and the party has given, our customer has given check to us, customer हमको क्या करा, चेक दिया 12,000 रुपीज का, तो वो सीधा क्या करें हम, we are assuming that के चेक सीधा बैंक में इमीडिएटली हम सेंड कर दिए, तो पैसे कहां पर चले गए, वो बैंक में, आज लगे गूगल पे, क्लियर नाउ। ओके सो अगेन फर्नीचर परचेज कितना है 18,000, पैसे जा रहे, क्यों, बिकॉज वी हैव परचेज द फर्नीचर एंड कैश इज गोइंग आउट, सो हियर बाय फर्नीचर 18,000, बाय फर्नीचर 18,000। नाउ सी ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, यस यू आर हैविंग द ओल्ड फर्नीचर, हमारे पास ओल्ड फर्नीचर था, हम बेच दिए उसको, बेचे तो पैसे आते, वेल वी आर सेलिंग समथिंग, वी रिसीव्ड द कैश, सी ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, ओके टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, हाउ मच 7,000, तो ये आपका कैश में आ गए पैसे। अगर बोले चेक लेते तो बैंक में चले जाते, क्लियर नाउ। What are the other payments are there? Rent paid, salaries paid, ये भी दो भी पेमेंट्स है, तो यहाँ क्रेडिट में देखो रेंट पेड, ओके salaries paid, सिंपल है। ये प्रॉब्लम में मैं खाली आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स समझाने के लिए प्रॉब्लम दिया, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम आई हैव गिवन only to understand what are the receipts and payments, clear? This might not be having in your okay material, you just go through with that, कोई उतना बड़ा इश्यू नहीं है। अगर मटेरियल में नहीं है तो बाद के एडिशन वाले जो भी लिए हैं उनके पास एडिशन में ये प्रॉब्लम्स है, क्लियर नाउ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इन विच वी आर हैविंग गुड प्रैक्टिस फॉर काउंटर एंट्री। काउंटर एंट्री की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है ये प्रॉब्लम में, ये आप अच्छे से देखिए, क्लियर नाउ। सी from the following particulars Dinesh prepare 3 column cash book, ठीक है। कैश इन हैंड 4,000, कैश एट बैंक 9,000, सो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 4,000 एंड 9,000 एज यूजुअल सेम है। तो आपके पास देखिए कैश इन हैंड कैश एट बैंक 12,000 ओके एंड 9,000, ठीक है, ठीक है 12,000 एंड 9,000। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ओके ऊपर का कॉपी पेस्ट करें तो अमाउंट बराबर नहीं दिख रहा, 12,000 एंड 9,000, इसको 12,000 कर लीजिए आप, ओके दिस इज 12,000 एंड 9,000, करेक्ट। नाउ कैश एट बैंक,
ओके, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में क्या करें आप, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं। सी हियर, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो पैसे कैश में से निकले और बैंक में गए। जस्ट नाउ व्हाट द एक्सपेंडिचर, व्हाट द ओके एग्जांपल आई हैव गिवन फॉर योर फ्रेंड, गूगल पे आप कर रहे बोला ना, जस्ट अगर मैं भी अगर गूगल पे कर दिया, ओके तो किसी के पास कैश लेके, तो मैं कैश बढ़ता गूगल पे, गूगल पे में अमाउंट कम हो जाता। ऐसे ही अगर मैं सपोज मान लीजिए आई हैव गिवन सम कैश टू अदर्स एंड दे हैव गूगल पे मी, तो मैं कैश कम होता और अकाउंट में पैसे बढ़ जाते। क्लियर, तो ये सेम कॉन्सेप्ट ऑन 2nd January, ओके 2nd January कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3000 रुपीज, 3000 रुपीज कैश बैंक में डिपॉजिट कर दी। तो सी हियर 2nd January बाई बैंक, पैसे कहां से निकल गए, कैश में। दिस इज द पेमेंट है ना, कैश काउंटर में से पैसे निकल गए, कितने 3000, मगर कहां पर गए वो, बैंक में गए। ये क्या लिख रहे हैं, व्हाई वी आर राइटिंग दिस सी, दिस सी मींस रिफर्स टू कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब डबल इफेक्ट। और ये कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बोले तो कैश गया, बैंक में पैसे आए, तो कैश में गए बोल के यहां लिख रहे हैं। और सी हियर ऑन सेम डेट टू कैश कॉन्ट्रा, और यहां पर आके बैंक में आके क्या करे 3000 रुपीज लिख दिए, यानी कैश में से निकले पैसे बैंक में आए। एंड ऑब्जर्व कर लीजिए आप, बैंक के कॉलम में लिख रहे तो यहाँ पर क्या आ रहा, कैश आ रहा, और यहाँ कैश के कॉलम में लिख रहे तो क्या आ रहा, बैंक आ रहा। क्लियर, नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट वन, कैश ऑन 4th, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4000, कैश क्या करे बैंक में डिपॉजिट करे 4000, तो सेम एंट्री। ओके, कैश क्या हो गया, बैंक से निकल गया 4000, कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश एंड बैंक इन्वॉल्व है। फिर टू कैश बोल के क्या आ गया, बैंक में आ गया 4000, ये कैश डिपॉजिटेड 2 टाइम्स, इजीली आपको समझ में आने के लिए बोल के मैं बनाया। क्लियर, नाउ अब देखिए, ओके थोड़ा शायद स्लाइड हट गई, नहीं दिख रहा आपको। ओके, नाउ इट इज नॉर्मल नाउ, ठीक है, राइट। सो कैश डिपॉजिटेड 2 बार हो गया। नाउ सी हियर, कैश विथड्रॉन, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए 6 के डेट पे 2 बार भी, एक 6000 रुपीज, एक 2000 रुपीज कैश विड्रॉ करे बैंक से, कई के लिए, ऑफिस यूज के लिए। तो एंट्री क्या था आपका, कैश विड्रॉ कर रहे बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट कैश आ रहा, टू बैंक, बैंक से पैसे जा रहे। ओके, तो यहां पर देखियो आप, बाई कैश 6000 रुपीज, ओके, एंड अगेन बाई कैश 2000 रुपीज, 2 बार भी बिजनेस में से, बैंक में से पैसे निकाले, और वो टू बैंक बोल के 6000 एंड 2000 दिख रहे। फिर अगेन वी आर राइटिंग कॉन्ट्रा, ठीक है भाई, बिकॉज कैश और बैंक इन्वॉल्व है, बोल के कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, इसीलिए हम क्या करें यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री है बोल के लिखे। क्लियर, वंस अगेन आई एम सेइंग, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक बोला, बैंक से कैश निकाल दी, तो कैश क्या हुआ, बैंक में कम हो गया और कैश अकाउंट में बढ़ गया। तो वही काम देखो, ये क्रेडिट में क्या करें, जाके बैंक में पैसे कम हो गया, पेमेंट है, बैंक वाला पेमेंट करा, और कैश में हम रिसीव करे बोल के यहाँ पर एक 200 और एक 6000 लिख ली, 2000 एंड 6000। क्लियर, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल सेंड टू बैंक, चेक क्या करे राहुल का लिए 17th को, और उसी दिन इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिए। क्लियर, नाउ सी हियर, चेक रिसीव्ड ऑन 17th राहुल 15,000, और सीधा बैंक में दिख रहा वो अमाउंट, कहां दिख रहा, बैंक में। व्हाई, बिकॉज ऑन द सेम डे वी हैव डिपॉजिटेड, एज लाइक सिंपल डायरेक्ट मेकिंग अ गूगल पे करते पैसे इमीडिएटली कैसे चले जाते हैं, ऐसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर बोले ऐसा जब ही सेंड कर दिए। ना थोड़ा नीचे केस देखिए, चेक इश्यूड टू कमल, हम क्या करें, कमल को चेक इश्यू करें, तो हियर आके बाय कमल, ओके, पेमेंट कहां से जा रहा,
बैंक से जा रहा, बैंक में पैसे कम हो जा रहे हैं. So decrease from bank account by Kamal. We have issued a check to Kamal and by Kamal means 7,000 rupees. Now there is a no contra entry because we are making the payment through bank. Directly check दे दिए, पेमेंट ले लिया. Clear? Now अब केयरफुली देखो नेक्स्ट केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल. ओके, कितना? 20,000. कब? व्हाट इज द डेट? 21 को राहुल का चेक रिसीव करे. 21 को राहुल का चेक रिसीव करे. नाउ वी हैव रिसीव्ड द चेक, मगर यहां पर सेंड टू बैंक बोला था. अब बोला क्या? नहीं बोला. नीचे देखो इमीडिएटली 22 के दिन क्या बोल रहा? राहुल चेक सेंड टू बैंक मींस 21 को चेक रिसीव करे. दैट माइट बी वी हैव रिसीव्ड लेट इन द इवनिंग, वी हैव नॉट सेंड टू बैंक. अपन चेक शाम में लिए होंगे या फिर नेक्स्ट डे का था तो नेक्स्ट डे के दिन भिजाएंगे, बोल के नहीं भिजाए. तो नेक्स्ट डे 22 को हम क्या करें? चेक बैंक को सेंड करें. तो यहां पर देखो आके चेक रिसीव 21 को चेक रिसीव करे तो वेयर वी आर राइटिंग? वी आर राइटिंग इन कैश, बिकॉज कैश के काउंटर में है मेरे, ठीक है, कैश के काउंटर में ही मेरे पास ये 20,000 का चेक है. दैट इज लाइक कैश. सपोज से एग्जांपल, कैश मेरे पास कितना है? 70,000 है या 80,000 मेरे पास कैश है. 20,000 चेक है. अगर कोई भी मेरे को पूछा काउंटर में कितने पैसे हैं तो मैं क्या बोलूं? कैश 80,000 है, 20,000 चेक एक है. तो टोटल कितना है काउंटर में? तो 1 लाख. तो लाइक दैट ओनली वी आर राइटिंग 20,000 फर्स्ट व्हेन वी आर रिसीविंग द चेक. जब भी हम चेक रिसीव कर रहे तो हम क्या करते हैं? उसको कैश बुक में लिखते हैं. रिसीव करके नेक्स्ट डे में डिपॉजिट करे तो ऐसा देता हूं क्लियरली, लेटेस्ट, ठीक है, डिपॉजिटेड की डेट देता हूं तो लिखना उसको कैश बुक में. नहीं तो ऊपर का देखो यहाँ पर चेक रिसीव्ड बोल के बताया एंड सेंड टू बैंक. जब बैंक को भेजा दी तो क्या करे? डायरेक्टली बैंक में लिख दिए, है ना. सी डायरेक्टली बैंक में लिखे अपन पहले 15,000 राहुल का. बट ये केस में क्या है? चेक रिसीव्ड इन 1 डे एंड डिपॉजिटेड ऑन अनदर डे. अब देखो राहुल चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, राहुल चेक सेंड टू बैंक. यहाँ अमाउंट नहीं दिया ना सर, बोले तो इट इज नॉट नेसेसरी. क्या फिर से अमाउंट देने की जरूरत है? 20,000 का चेक है, मालूम है, अंडरस्टूड है. तो यहाँ पर देखो अभी कैश में लिख लिए थे ना, राहुल चेक लिए बोले कैश में लिखे थे. अब क्या कर रहे हैं? वही कैश चले गया बोल के देखो बाई बैंक कॉन्ट्रा 22 बाई बैंक कॉन्ट्रा 20,000 कैश गया. फिर डेबिट साइड में देखो टू कैश कॉन्ट्रा, ये बैंक में पैसे 20,000 आ गए बोल के लिख रहे. सिंपल ना. चेक रिसीव करे जब क्या लिखे अपन? कैश काउंटर में, कैश में लिखे 20,000. अब बाद में काउंटर एंट्री पास कर रहे जब उसको हम डिपॉजिट कर रहे, ठीक है. जब कैश हम डिपॉजिट कर रहे, अब चेक डिपॉजिट कर रहे तो काउंटर एंट्री लिख ले. क्यों? चेक रिसीव एक डेट पे है, डिपॉजिट ऑन लेटर डेट पे है, तो उसको रिसीव कर जब कैश में लिखना, लेटर डेट का काउंटर एंट्री पास करना. क्लियर? नाउ अब अगर गौर से देखेंगे आप, इफ यू सी ऑब्जर्व इन अकाउंटिंग, तो ये 20,000 कैंसिल, ये 20,000 कैंसिल. दो भी देखो कैश में कैंसिल हो जा रहा, तो दिख रहा कहां पर? वो खाली बैंक में दिख रहा. टू बैंक यहाँ दिख रहा ना आपका, टू बैंक यहाँ दिख रहा आपका. ओके 20,000. अगर उसी दिन भी डिपॉजिट करते तो डायरेक्टली भी बैंक में ही दिखता था ना, जैसा ऊपर यहाँ 15,000 दिख रहा था, यहाँ पे यहाँ पर भी 20,000 वैसे ही सेम दिखता. ओके, सो रिमेंबर केयरफुली, ठीक है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, चेक रिसीव करें एंड डायरेक्टली डिपॉजिट ऑन द सेम डे, सीधा बैंक में आता. चेक रिसीविंग 1 डे कैश बुक में लिख लेंगे. चेक सेंड टू बैंक और डिपॉजिटेड ऑन लेटर डेट्स तो काउंटर एंट्री आती. क्लियर? नाउ नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन. ओके, कैश विथड्रॉन, ओके, फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. अब पर्सनल पर्पस के लिए बंदा क्या करा? 10,000 रुपीज निकाला. फिर और एक बार 25th के दिन कैश विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस. आपको एंट्री समझ में आने के लिए दो बार दिया. सी पर्सनल पर्पस मींस ड्राइंग्स 10,000. ओके, ये देखो रिसीव्ड विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला पर्सनल पर्पस के लिए तो 10,000. रिसीव्ड कैश ये निकाल देंगे अपन, बैंक निकाल देंगे फॉर पर्सनल पर्पस. तो कैश निकाले तो क्या है? ड्राइंग्स में आ रहा, और बैंक चेक बोले तो विड्रॉ फ्रॉम बैंक बोले तो यहां से आ रहा. तो टोटल कर लीजिए आप, इसका कितना आ रहा? 40,000, 12,000,
6,000, 2,000, 20,000. So it's 2,000 और 6,000, 8 plus 12, 20, 20 plus 20, 40, 40,000 debit and 40,000 credit. And उसमें से 3, 4 ठीक है, 6, 6 plus 20, 26, 26 plus 5, 30, 26, 26 है, 3 है ना, 3 plus 7, sorry, 3 plus 4, 7, 7 plus 20, 27, 27 plus 5, 32, 32, तो ये 40,000 में से ये पूरा निकाल दीजिए आप, तो क्या बच रहा है आपका 8,000, 40,000 माइनस 32, 8,000. लाइक सेम फिर से बैंक का भी वैसे ही टोटल करिए, 8, 12, 9,000, 3,000, 4,000, 15,000, 20,000. अब में करेंगे 20 plus 15, 35, 35 plus 4, 39, 39 plus 6, 39, 30, 40, 41, 42, 42 plus 9, 51, 51 डेबिट में लिख दो, देन बड़े के फिगर है, हेवी फिगर है, 51 क्रेडिट साइड. नाउ माइनस दिस 6,000, 2,000, ओके, 7,000 and 10,000. किसमें से 51 minus 6,000, 2,000, 7,000 and 10,000. What is the balance left? Okay, the balance left is 26,000. Balance कितना आ रहा? 26,000. So this 51,000, this 51,000, और ये पूरे माइनस करें तो balance is 26,000. Now वही 8,000 and 26,000 को क्या करना अपन? डेबिट साइड कर देंगे. क्लियर? Yes, hello. So hope you have understood 3 column कैश बुक. बहुत सिंपल वे में है और बहुत इजी वे में है. अच्छा से समझ लीजिए इसको और प्रैक्टिस अच्छा से करना है. ओके, ऊपर के स्लाइड से जो मैं फर्स्ट से बताया पूरा स्लोली देख लेके अच्छा से प्रैक्टिस करिए. एंड ये नेक्स्ट ये क्वेश्चंस आपके पास प्रॉब्लम बुक में है ये. ओके, सी आई विल जस्ट टेल यू. कैश नॉर्मल बैलेंस, ओके, बैंक नॉर्मल बैलेंस, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बाला प्रसाद, डिस्काउंट तो कोई मसला नहीं है, पेमेंट ठीक है नहीं, सैलरीज पेड फॉर द मंथ, कैश सेल्स ठीक है, डेबिट साइड आ जाता है आपका, पेड टू ओके वीराभद्रा कैश डिस्काउंट ठीक है, ये पेमेंट्स में आ जाता. चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट गिवन ठीक है, सीधा बैंक में दे दिया, पेमेंट रिसीव्ड बैंक में दे दिया. कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज बोला तो ये क्या है आपका ड्राइंग से. एंड लास्ट ओनली वन एंट्री इज योर कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? लास्ट का एक ही कॉन्ट्रा एंट्री है, लास्ट का एक ही कॉन्ट्रा एंट्री है. क्लियर? नाउ चलिए सॉल्यूशन देखिए आप. ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 750 एंड 9,700. देन हियर बाला प्रसाद discount allowed and received 1870, 2 sales, okay, then 4,700. Then on 12th we have paid the salaries bola 1,500, see paid salaries 1,500, okay. Then payment to वीराभद्रा, तो वीराभद्रा को पेमेंट करे बैंक के थ्रू, चेक इशू टू वीराभद्रा, सी चेक ओके, पेड टू वीराभद्रा थ्रू चेक पेमेंट करें. ओके, नाउ उसके बाद आ गया आपका रिसीव्ड फ्रॉम राम, चेक लिया आप राम के पास से, देखो रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम तो 391 डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए बैंक में, 391 राम चेक. नाउ ड्राइंग्स, ये पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से पैसे निकाल लिया. ड्राइंग से कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, नो कॉन्ट्रा एंट्री, ओनली ड्राइंग्स मींस पर्सनल यूज को ड्राइंग्स बोलते हैं. ओके, नाउ लास्ट वन. ओके, 21st डिपॉजिटेड इनटू बैंक 860 हियर. ओके, 21st के दिन क्या करें? बैंक में डिपॉजिट करें, तो टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री, पैसे कहाँ गए? बैंक में, बैंक अकाउंट में दिख रहे हैं. और यहाँ देखो 21st के दिन सेम, ओके, कॉन्ट्रा पैसे कहां से निकले? कैश में से
860 निकले और कैश में से 860 निकल के बैंक में आ गए 860 रुपीज। ओके क्लियर। सो दिस इज द काउंटर एंट्री। आप टोटल कर लो आप ये 750 18 ओके 74,700 that comes to 7320. Then write down this 7320 here and deduct these two items 1500 and 860. तो क्या बैलेंस रहता 4,960 रुपीज। क्लियर। सो लाइक दैट यहां पर भी आ गया। आ जाइए 10,951 9,700 प्लस 391 प्लस 860, ये तीनों भी आइटम्स को ऐड कर लिए तो क्या होता 10,951 10,951 माइनस 450 एंड माइनस 2,300। तो व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट 82, ठीक है नहीं 101 रुपीज, यानी 8,201। तो वही कैरी डाउन को फिर नीचे ब्रॉड डाउन करिए, कैरी डाउन को क्या करना ब्रॉड डाउन कर दो। क्लियर। सो लाइक दिस यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके मैं बता रहा हूं इसमें काउंटर एंट्री कौन सी है पहचाना बस उतना ही है। ओके कैश बैलेंस ये डेबिट में आ जाता है आपका कैश बैलेंस। चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्रीनिवास ये डेबिट में आता रिसिप्ट्स। पेड सैलरीज या क्या पेमेंट में आता बैंक में। परचेज गुड्स फॉर कैश ये पेमेंट है कैश। ओके चेक बोले तो बैंक से चले गए। रिसीव्ड चेक 1,000 फ्रॉम कस्टमर बट नॉट सेंड टू बैंक, ये क्या करना रिसिप्ट्स में कैश में लिख लेना। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर श्रीनिवास डिजोनर वाला ये डिजोनर है। ओके सो ओके चेक रिसीव्ड फ्रॉम ओके ये चेक रिसीव्ड फ्रॉम जो दिख रहा श्रीनिवास 750 अपन उसको रिसिप्ट में लिखे थे, रिसिप्ट में बैंक कॉलम में ना, ये पेमेंट में क्या करना बैंक कॉलम में निकाल देना। मिस्टर क्रिश इश्यूड ए चेक अपन ठीक नहीं इन फुल सेटलमेंट चेक रिसीव कर रहे तो ये आपका रिसिप्ट है और आपका कहां पर आता है ये बैंक कॉलम में आ जाता। कैश डिपॉजिटेड 200 ये क्या है आपका काउंटर एंट्री है 30 की। चेक दैट द सॉल्यूशन। बैलेंस यस बैलेंस टू श्रीनिवास चेक रिसीव करे बोला सीधा बैंक में लिख दिए। बाई सैलरीज बैंक से पे करे, परचेजेस बैंक से पे करे। श्रीनिवास का डिजोनर बोला दिस इज द डिजोनर ये रिसीव करे थे ना डेबिट साइड बैंक कॉलम में ना, डिजोनर होते जो रिवर्स एंट्री पास करके क्रेडिट कर दे रहे। क्लियर। तो अभी क्या हो गया एक बार श्रीनिवास का यह नाम यहाँ डेबिट में आया था, एक बार क्रेडिट में आ गया। इफ यू रिमेम्बर द जर्नल इज वेल तो क्या होता जब चेक रिसीव करते तो हम क्या करते बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रीनिवास बोल के लिखते। अब रिवर्स एंट्री हो गया श्रीनिवास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बोल के हो गया तो कैंसिल कर दिया उसका। तो मतलब जो श्रीनिवास का पहले बैलेंस दिख रहा था अभी भी वो बैलेंस रहता, ही हैज टू पे टू अस। क्लियर। ये डेटा से कस्टमर का है कैश रिसीव करे बोला 1,000 रुपीज। क्रिश उसके पास से हम क्या करें चेक लिए बोला 750 का। देन एक ही एंट्री है काउंटर एंट्री बोला मैं आपको 30 के दिन ओनली वन सिंगल काउंटर एंट्री टू कैश कहां पर है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एंड यहाँ आके बाय बैंक ओके काउंटर एंट्री कैश में है। क्लियर नाउ। तो ये आपका डेबिट का टोटल कितना हो गया 2,500 एंड 1,000 दैट कम्स थ्रू 3,500 ये 3,500 माइनस 2,000 तो 3,200 अगेन 3,750 750 250 तो टोटल कितना हो गया 4,700 आपके ये पूरे 3 आइटम्स माइनस कर दो उसका 500 450 750 so what is the balance left 3,000 यही 3,000 एंड 3,300 एंड 3,000 कैरी डाउन को क्या करना है फिर वापस ब्रॉड डाउन कर देना। क्लियर। सो 3 प्रॉब्लम्स आई हैव एक्सप्लेन्ड विद इंट्रोडक्शन पार्ट। अच्छा से देख लीजिए आप लोग काफी है आपके लिए। ओके एंड आप अच्छा से प्रैक्टिस करना है इसको वो इंपॉर्टेंट है। दूसरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी आपके पास बुक में हैं and do that problems also. Okay, thank you all of you, thank you very much, all the best for your exams.